ये जो आपने जो कहा था कि यूजुअली जब औरतों की बात होती है तो उनको बुद्धि के मामले में उनको थोड़ा सा कम समझा जाता है, ये बिल्कुल बात आई थिंक इस फिल्म के थ्रू गलत प्रूव हो जाएगी। एंड इसके अलावा हालांकि जो एक्चुअल मिशन था उसमें इतनी ही औरतें उसमें इन्वॉल्व थी, बट आई थिंक द कैरेक्टर्स एंड देयर स्टोरीज आर फिक्शनलाइज्ड, दे आर ऑलमोस्ट काइंड ऑफ फिक्शनलाइज। सो ये कहानियाँ और ये नाम जो किरदारों के नाम हैं वो असली नाम नहीं है, और हमारे सारे ट्रैक्स भी फिक्शनलाइज्ड हैं। Not an offbeat film. मैं आपको बताऊं, this is a 100%. It is a very unusual and a very important subject, but this is what I call a 100% entertaining film. And जैसे मैं कह रहा था कि this is a film for the entire family. एक भी बच्चा नहीं है in India, or not, there wouldn't be one parent in India who wouldn't want to take the children for this movie, because this film inspires, this entertains, it'll make you laugh. ये जो सब इन्होंने कैरेक्टर्स प्ले किए हैं, इट्स अनबिलीवेबल। आई मीन, इम्पोर्टेंट थिंग इज ऑफ कोर्स कि मार्स का मिशन था, बट देन देयर वर सच इंटरेस्टिंग कैरेक्टर्स हु एक्चुअली मेड इट हैपन, एंड आई कैन अश्योर यू दैट दिस फिल्म इज गोइंग टू एंटरटेन द नेशन। थैंक यू। देखिए, मैं आप बताइए मुझे, अगर ऐसी स्क्रिप्ट आपके पास आए जो इतनी कमाल की हो, जो इतनी बड़ी बात बोले, और आपको एक मौका मिले कि आप इंडिया की पहली स्पेस फिल्म आप प्रोड्यूस करें और आप एक्ट करें, तो क्यों ना। और उसके बाद ऐसे धुरंधर एक्टर्स इस फिल्म के अंदर वो हाँ बोलें, और क्विकली, मतलब एक बार सुनने के बाद हाँ बोल दें। मतलब आप सोच सकते 5 हीरोइनों को एक साथ लाना कोई मजाक काम नहीं। बहुत पापड़ बेलने पड़ते हैं, वाकई में मैंने बेले हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन वाज विद्या। मैं नेशनल अवार्ड वगैरह या किसी भी अवार्ड के बारे में सोचती नहीं हूँ। झूठ। पता आपको, ये जब पैदा हुई थी ना, तो नर्स ने बोला मुबारक हो, आपके घर नेशनल अवार्ड आया। थैंक यू। पर बाल्की और जगन आए थे, नरेट किया उन्होंने, और मैंने तुरंत, शायद करियर में पहली बार मैंने तुरंत हाँ कही इस फिल्म के लिए। सो दे फिनिश्ड एंड आई सेड ओके, आई एम डूइंग इट, बिकॉज़ स्क्रिप्ट इतनी अच्छी लगी, और उन्होंने बताया कि किससे बात कर रहे हैं। ऑफ कोर्स अक्षय वाज ऑलरेडी डूइंग द फिल्म। आई जस्ट फेल्ट दैट दिस स्टोरी नीडेड टू बी टोल्ड। एंड मैं जो आप अक्षय से सवाल कर रहे थे उसके बारे में थोड़ा मैं बताना चाहती हूँ। मेरी फीलिंग है कि वी इंडियंस आर नॉट, वी डोंट वेयर our pride on our sleeves for our country, and I'm so glad अब ज़्यादा फिल्में बन रही हैं which are making us aware of what a great nation we are यार। जैसे मैं जगह जगह जाती हूँ, दुनिया भर घूमती हूँ, तो लगता है कि they are so proud of their nation, of their heritage, of their culture. If there's anyone who needs to be proud, it's us. Our culture, our history, our achievements are great, and we should start celebrating them. And I'm so glad our movies are doing this, and that Mission Mangal is doing it. Hi. Thank you. Hi. Three national awards. It is not that national award. All for my Kannada films. Okay. Not that 2 Olympics. Not that I entered. I became an actor at 45. I became an actor at childhood itself. I was in theatre. Then I got straight into films very late in life, because I was working for Air Force for 23 years, and then another 9 years in HAL, where I touched PSLV structure. Yeah. You didn't tell us this. That sanitization which you did here in this film, I've gone through that there. and Why did you tell us this, Batanna? And I have also tested the first cosmonaut. Okay, when I was the chief engineering officer of aerospace, Institute of Aerospace Medicine. Okay. So this, and many of my friends are working in ISRO. They were all my classmates in Indian Institute of Science, and I was very proud of those boys, because they were younger. I had come to do my master's degree a little later in life. And to be part of such an event on the screen, it is something unique. See, I was seeing all these great artists from a distance,
They were stars. But when I entered here, they all became friends. Okay. Hats off to them. Hats off to them. They treated me so well and gave me the confidence to do a film in Hindi. It's not my language. So we treated you well because we wanted to finish. नहीं ऐसा नहीं, एक्सक्लूसिविटी तो आई डोंट थिंक सो, ऐसा मुझे सोचना भी चाहिए और किसी भी एक्टर को सोचना चाहिए, क्योंकि सारी डेटा बिलोंग्स टू एवरीबडी, एवरीबडी कैन कम एनी टाइम दे कैन कम. सो मेरा ये सोचना गलत होगा कि ऐसा सोचूं कि ये मेरी डेटा है. I'll tell you something. मैंने परसों तरसों की बात मैंने एक फोटो देखी थी, मैंने एक तस्वीर देखी थी जिसके अंदर एक औरत बच्चे को लेके पानी के थ्रू से निकल रही थी. एंड एक्चुअली आई कंसिडर दैट हम लोग बहुत लकी हैं जो हमारे साथ ऐसा नहीं हो रहा है. व्हेन आई सॉ दैट फोटोग्राफ आई थॉट ये मेरे साथ भी हो सकता है, मेरी बीवी और मेरी बेटी के साथ भी हो सकता है. जैसे वो फोटोग्राफ में था कि कैसे वो पानी के अंदर इतना पानी था और बच्चे को यहाँ तक लेके जा रही थी, आसाम फ्लड का ही था. एंड आई वुड जस्ट से कि मुझे सिर्फ रिएक्ट नहीं करना है और सो सैड ऑन ट्विटर में नहीं डालना है. मैं आप सबसे दरख्वास्त करूंगा, ये मत डालो, कुछ करो, चाहे वो एक चवन्नी क्यों ना हो या 25 लाख क्यों ना हो या 25 करोड़ क्यों ना हो, जितना आप दे सको. गेट अप, स्टॉप ट्वीटिंग अबाउट इट and saying it is very sad, it is so, God bless everything, I hope everything was okay. Don't do that. React to it. Just do something. आप लोगों को एक और बात बताना चाहता हूँ. I just realized it. I knew about it. ये पिक्चर 2019 15 अगस्त को रिलीज हो रही है और आपको पता है एक बहुत ही इत्तेफाक की बात है कि इसरो जो है 1969 15 अगस्त को शुरू हुआ था. यानी कि 15 अगस्त को हम जो रिलीज कर रहे हैं 50 साल इसरो के पूरे होंगे. और ये एक इत्तेफाक है. भाई साहब ये इत्तेफाक है, ये कभी सोचा नहीं था हमने, कुछ नहीं, ये एक इत्तेफाक है कि ऐसा हो रहा है. That's we are the first people to make Indian एक हिंदी पहली स्पेस की फिल्म. अभी आज तक कभी बनी नहीं, लेकिन ये पहली स्पेस की फिल्म होगी. एंड मैं आप लोगों सबसे दरख्वास्त करूंगा, नॉट एज अ जर्नलिस्ट और एज अ मीडिया टू मी एंड यू, बिटवीन यू एंड मी, बस ये दरख्वास्त करूंगा अपने बच्चों को जरूर ये फिल्म दिखाना. एक ऐसी फिल्म है जो कि सोचने पर मजबूर करती है, जो कि एक्सपेरिमेंट के बारे में बात करती है, चाहे वो किसी भी फील्ड में जाएं वो लोग. लेकिन एक आपको एक पता चलेगा कि एक इंसान को सोचना बहुत जरूरी होता है. थिंकिंग हैज अ लॉट ऑफ ग्रेट पावर. जैसे आपको बताया, एक छोटी सी बात है, पूरी तलते हुए, एंड दिस इज अ फैक्ट, पूरी तलते हुए एक आइडिया आया कि इस होम साइंस की टेक्निक से हम मार्स पे जा सकते हैं. वैसे ही एक और आइडिया आता है, अगर आपने देखा होगा विद्या एक स्लिंग घुमा रही है, दैट इज कॉल्ड स्लिंग शॉट थियरी. उस हिसाब से, उस स्लिंग शॉट थियरी के हिसाब से हम लोग वो भी थियरी लेके मार्स पे गए थे. ये छोटी छोटी होम साइंस की थियरी है, ये कहानी है इन लेडीज की जो जिस हिसाब से इन्होंने सोचा क्या कर सकते हैं, कैसे कर सकते हैं, और ये असली कहानी है. और आई वुड से कि जो इसरो ने कमाल कर दिखाया है वो मतलब इट इज मतलब कोई उसका मोल नहीं है. बहुत कमाल की चीजें हैं जो हमें पता चली. मैं खुद हैरान हुआ जब जगन ने मुझे इस चीजों के बारे में बताया, क्योंकि ये सब बातें हैं जो छुपी रह जाती है, अंदर ही रह जाती है. जैसे मैंने जब एयरलिफ्ट बनाई थी, मैं तो इतना हैरान हो गया था, मुझे भी नहीं पता था, मीडिया को भी नहीं जानते थे, क्योंकि एक ही कहीं आर्टिकल था कि हमने जाके 1,70,000 लोगों को कोविड से उठा के लेके आए थे, उनकी जानें बचाई थी. किसी को नहीं मालूम था, वर्ल्ड गिनीज रिकॉर्ड में था, लेकिन इसके बारे में कोई जानता नहीं. तो ऐसे ही मैं तो यही कहूंगा कि हमारी इंडस्ट्री जो है वो ऐसी और फिल्में बनाए, ऐसी बहुत सारी फिल्में बनाए, क्योंकि हमारे अंदर, हमारे देश के अंदर ऐसी ऐसी कहानियां हैं जो कि एकदम अभी तक छुपी हुई है, वो बाहर आनी चाहिए. तो मैं जगन का बहुत शुक्र. थैंक गॉड. इतना बोलूंगी, मेरे को एक लाइन याद है जो मैं जब ये एक्चुअल में हुआ था, तो एक लाइन बोली गई थी कि it is actually 1/3 of the budget of the film Gravity that we have made this mission successful in India, like ISRO has done it. So that वो मेरे दिमाग में ना उस दिन से चिपकी हुई है वो लाइन. आज तक कोई मुझसे पूछता है ना कि इस पिक्चर के बारे में, ऑब्वियसली अब तो काफी लोगों को पता है, सबसे पहली लाइन मेरे मुंह से यही निकलती है कि 1/3 of the budget of a film
that America made. हमने उसमें actually ऑर्बिटर भेज दिया मार्स तक. आपसे अभी अमेरिका नहीं, अभी 2.0 की बात करो, उससे कम में वो ज्यादा तो आधे जन कसम से आधे जन को पता नहीं Comparison रहेगी। सर, जीतने में जो मजा उधर से है ना, वन अपमैनशिप तो वही एंजॉय करूंगी ना मैं. नहीं नहीं, वो तो पता ही है, वो लोग तो बड़ी फिल्में बनाते हैं, बड़े बड़े उनके बजट होते हैं, लेकिन हम I think the real project, the MOM project in ISRO, had equally these number of women working, or more maybe. So I don't think it was exaggerated for the film. I think there are. My aunt actually works in ISRO as well. She's a scientist, just like Jagans. We're from Bangalore, so we know that there are a lot of women scientists who work in ISRO, and they were part of the project. एक बहुत पॉपुलर फोटो भी था जो हमको पहले दिखाया था, जिसमें women scientists were celebrating after the satellite was launched. So we have actually based